AC transmission in demo. So power transmission you have already learned it. Conventional demo was AC DC means you generated AC in an alternator, then you rectified it in a rectifier, and ultimately that rectified DC you used in a traction motor, which is DC series motor. Now for this, you needed one engine for producing mechanical power, and that engine coupled with the alternator converted the mechanical power into electrical 3-phase AC, then it is rectified in a rectifier, then it is given to the DC traction motors. Now you see, in new DMOs, like 1600 HP DMOs, you will see the transmission is somewhat different. You have one AC alternator there coupled with the engine, and you are generating 3-phase AC from here. Then you rectify it by giving it into a rectifier and rectify it into DC. Now this DC cannot be used in your traction motors of these demos, because these traction motors are AC traction motors, induction motors. So what you need, you control this DC first, and that controlled DC is converted again into AC by using one inverter. So this traction converter consists of two things: traction computer for controlling and traction inverter for conversion of DC into AC. Now this AC you are giving to the traction motors, induction motors. One more important thing I would like to discuss here, unless you use a traction converter, that is, unless you use a inverter, you cannot control the traction motors with the AC generated by the alternator. यहाँ सिंगल फ्रीक्वेंसी का AC जनरेट होगा, आपको चाहिए वेरिएबल फ्रीक्वेंसी, वेरिएबल वोल्टेज VVVF वाला AC. So you need a traction inverter at last. So first we convert it into DC, and then we control it, and then again we convert it into AC by a traction inverter, and this inverter gives you variable voltage, variable frequency AC. This is utilized to control the AC traction motors. Necessarily these are induction motors in DIM. Also in HHP loco, those are also induction motors. So till now it is clear. Okay. Now see some details of this 1600 HP demo. It has got one DPC and 4 TC in a unit. 5-coach unit already I have discussed, and up to 4 basic units train formation has been done, and only thing have to be kept in mind that both the ends there should be a DPC, so that the train doesn't need any shunting. Bidirectional movement is always there. Now the maximum speed of this 1600 HP demo is 110 kilometers per hour, and this maximum speed for 1400 HP demo is 100 kilometers per hour. Now, but it is tested at speed of 123 kilometers per hour. Engine power is 1600 HP, but you are getting the power of 1450 HP approx for traction. Input to traction alternator is this much HP.
Now maximum tractive effort you get from this is at a very low speed of 20 km per hour, and the tractive effort maximum you get is 16 tons. Now let us discuss the features. क्या एडवांटेजेस इससे मिला 1400 से 1600 एचपी में आने के बाद? इंक्रीज्ड पैसेंजर कैपेसिटी बिकॉज यू हैव इंक्रीज्ड वन एक्स्ट्रा कोच. 1400 में 4 कोच का यूनिट था, यहाँ 5 कोच का यूनिट है, एक कोच सीधे बढ़ गया, पैसेंजर कैपेसिटी बढ़ गया. एक्सक्लूटर कंट्रोल्ड है डेमो, सो देयर इज फॉल्ट डायग्नोस्टिक्स. आपको स्क्रीन पर फॉल्ट्स आ जाएंगे, क्या फॉल्ट है ड्राइवर को पता चल जाएगा. नाउ टच स्क्रीन डिस्प्ले, 2 टच स्क्रीन डिस्प्ले दिया गया है, बड़ा स्क्रीन है, एलईडी इंडिकेशन पैनल्स है, एंड एनालॉग मीटर्स के साथ साथ डुप्लीकेट गेजेस भी दिया हुआ है आपके टच स्क्रीन पर. अगर आपका एनालॉग मीटर्स जो है वो डिफेक्टिव हो गया, यू कैन वर्क विद दी गेजेस प्रोवाइडेड ऑन दी टच स्क्रीन. And dual display unit is there for redundancy. If one display unit is defective, then the other will work. Now the compressor motor, there is a compressor for braking purpose. compressor air बनाने, compressed air बनाने के लिए आपने 1400 HP में देखा था, जो compressor था वो belt driven था इंजन से. Now here the compressor is independently one AC motor driven, and that motor is controlled by vehicle control computer. Actually HHP लोको में आपने लोको कंट्रोल कंप्यूटर देखा होगा, यहाँ पर उसी कंप्यूटर को हम कहते हैं vehicle control computer. Now this vehicle control computer controls the compression. You need 7 to 8 kg लोडिंग अनलोडिंग आपको चाहिए. तो जैसे ही 8 kg हो जाएगा प्रेशर, द मोटर विल बी मेड ऑफ बाय दिस VCC, vehicle control computer. और जैसे ही 7 kg पर प्रेशर आएगा, मोटर विल बी अगेन मेड ऑन. सो लोडिंग अनलोडिंग के बीच में हमारा कोई अनलोडर वाल्व इसमें नहीं है, कोई लोडिंग अनलोडिंग मैकेनिज्म, कोई गवर्नर नहीं है इसमें, ईपीजी वगैरह नहीं है, इलेक्ट्रोन्यूमेटिक गवर्नर. यहाँ पर हम मोटर को बंद करके या स्टार्ट करके ही लोडिंग अनलोडिंग को कंट्रोल करते हैं. स्पीड टाइम डिस्टेंस रिकॉर्डर हमारे कंप्यूटर में इनबिल्ट है, एंड इवेंट रिकॉर्डर भी है, डिफरेंट फॉल्ट्स वगैरह उसमें और भी चीजें रिकॉर्ड करने के लिए. लाइफ टाइम स्टैटिस्टिकल डाटा रिकॉर्डर है, इंटेलिजेंट डाटा लॉगर है. इंटेलिजेंट डाटा लॉगर इज कि ये लगा रहने से आपको लैपटॉप ले जा करके जो है डाटा लाना नहीं पड़ेगा. यू कैन डाउनलोड द डाटा विथ योर पेन ड्राइव. एंड मोर ओवर इंटेलिजेंट डाटा लॉगर जो है आपको ये डिफरेंट कैटेगरी में डाटा को डिवाइड करके लगता है, आपको किस कैटेगरी का डाटा डाउनलोड करना वो डाउनलोड कर सकते हैं. रिमोट मॉनिटरिंग सिस्टम, रेमलॉट आपने सुना होगा. रेमलॉट आप जानते हैं? Yes, sir. So this Remlot is also fitted in this type of demo, so you can know where your demo is running and what is the present condition, whether it is now in start condition, in which notch it is running, what is its different pressures, current, temperature, voltage, everything you can see on the Remlot. Remlot is also fitted in this remote monitoring system. Then in place of auxiliary alternator, I have already discussed with you, in place of auxiliary alternator, one APC is fitted here, auxiliary power control or auxiliary power converter, APC. किस लिए है? To provide load sharing. Means जो काम auxiliary करता था, auxiliary क्या करता था? कंट्रोल में सप्लाई देता था, फैन लाइट को सप्लाई देता था, और
एक्साइटर को एक्साइटेशन के लिए सप्लाई देता था। तो यहाँ पर हमारा एपीसी जो है, इसमें एक काम और जुड़ गया है, इसमें एक काम जुड़ गया है, जो कंप्रेसर का 3 फेज मोटर है वहां भी सप्लाई देगा, कंप्रेसर मोटर को। Now there are redundancy in the communication network also. सी कि हम 1400 एचपी में क्या है, वेहिकुलर कपलर, इंटर वेहिकुलर कपलर्स है, जिसमें ए बी सी डी 4 केबल है। इस डीपीसी से इस डीपीसी के सॉकेट में ये चारों लगा देते हैं। जितने पॉजिटिव वायर्स है वो ए बी सी में गए, ए बी सी डी एंड ई भी है। ए बी सी में सारे पॉजिटिव वायर्स गए हुए हैं डिफरेंट चीज के कंट्रोलिंग के लिए, और डी में सारे नेगेटिव हैं, डी में ऑल नेगेटिव वायर्स गए हुए हैं, और ई में जो है इलेक्ट्रोन्यूमेटिक ब्रेकिंग सिस्टम का जो सप्लाई है, जो पीयू कॉइल होल्ड कॉइल को एनर्जाइज करने के लिए यहाँ से जाता है सप्लाई, उसके लिए ईपी ब्रेक के लिए सप्लाई ई कपलर से गया। तो ये 5 कपलर लगा करके इधर एक से दूसरे कोच में हम लोग जोड़ते चले जाते हैं पूरे ट्रेन में। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ट्रेन कम्युनिकेशन नेटवर्क है, एंड इसके साथ साथ वायर्ड ट्रेन बस WTB, दोनों में से एक तो ये कपलिंग सिस्टम है ही है, दूसरा अपना ट्रेन कम्युनिकेशन नेटवर्क सिस्टम भी है। इफ एनी वन ऑफ दिस फेल्स द अदर वर्क्स। एक्चुअली दिस इज फॉर कम्युनिकेशन विद द रिमोट डीपीसीज। लीडिंग डीपीसी से आप चला रहे हैं, बाकी डीपीसी से तो कम्युनिकेशन होना चाहिए, उनके पावर को आपको लेना है, उनके जो मैसेजेस आ रहे हैं वो ड्राइवर को मिलना है, उनके जो फॉल्ट्स आएंगे वो ड्राइवर को दिखना है। सो कम्युनिकेशन के लिए हमें ये केबल्स की जरूरत होती है, जो इंटर वेहिकुलर कपल्स केबल्स है, उसमें इंटर वेहिकुलर कपलर। बट यहाँ पर टीसीएन एंड WTB दोनों है, जिसमें से एक भी अगर डिफेक्टिव हो गया तो दूसरा काम करेगा। फॉर रिडंडेंसी बोथ हैज बीन प्रोवाइडेड। लीड डीपीसी कम्युनिकेट ट्रैक्शन कमांड्स to the remote DPC, and remote DPC transfers all performance data to the lead DPC, and crew related messages from remote DPC are transferred to the lead DPC. So redundant trend line communication to utilize full power from rear DPC in case of WTB is failed, that I have already discussed. If anyone fails, other works, redundancy is there. Now, optical hot redundant communication between vehicle control computer and traction inverter. I have told you कि there is a vehicle control computer, that is HHP में इसको हम लोग कहते हैं लोको कंट्रोल कंप्यूटर, और ये आपके जो 4 मोटर में को चलाने के लिए 2 ट्रैक्शन कन्वर्टर्स है, जिसके अंदर में हर एक में एक TC और एक TI है, ट्रैक्शन कंप्यूटर एंड ट्रैक्शन इन्वर्टर। ये दो मोटर को कंट्रोल करेगा, और एक ये 2 मोटर को कंट्रोल करेगा, TC प्लस TI। This will also control 2 traction motors, but this will be controlled by this VCC, and this VCC will send ये ट्रैक्शन इन्वर्टर जो है, इस दोनों ट्रैक्शन इन्वर्टर जो है, ये तो IGBT बेस्ड ट्रैक्शन इन्वर्टर्स है। तो IGBT के गेट में जो एनर्जाइज करने के लिए, गेट को सप्लाई देने के लिए यहां से जो जाएगा कमांड, दैट विल गो थ्रू ऑप्टिकल फाइबर केबल फ्रॉम हियर आपका डिजिटल सिग्नल निकलेगा, कन्वर्टेड इनटू ऑप्टिकल सिग्नल, ऑप्टिकल फाइबर केबल से ट्रेवल करेगा, देन यहाँ आकर के फिर वो एनालॉग सिग्नल बन जाएगा, वोल्टेज सिग्नल, और टीआई में जो IGBT लगे उसके गेट को एनर्जाइज करेगा। सो इसीलिए कहा गया है कि व्हीकल कंट्रोल कंप्यूटर और ट्रैक्शन इन्वर्टर के बीच में जो कम्युनिकेशन है, दैट इज ऑप्टिकल हॉट रिडंडेंट कम्युनिकेशन, दिस इज थ्रू ऑप्टिकल फाइबर केबल। इज इट क्लियर?
Yes, sir. Why this has been given? For reliable and trouble-free service. IGBT based inverters are already discussed for better efficiency and reliability. Now traction motors, 3-phase AC induction motors are there. Those motors are lightweight and low cost as compared to DC motors of same capacity. And moreover, the most important thing is maintenance very less compared to DC motors. And no carbon brush, no commutator, so no failures due to those things, and very less maintenance requires. No power ground, no flash over, carbon brush है ही नहीं, commutator है ही नहीं, तो क्यों होगा ये? So all these features are there in the traction motors, induction motors. Now improved adhesion. Why? जब हम डीसी मोटर यूज करते हैं ना, तो adhesion मतलब coefficient of friction पर डिपेंड करता है ना adhesion. We get 0.34 maximum coefficient of friction on the in between the rail and the wheel. This is the mu, coefficient of friction. But when we operate with a induction motor, ये डीसी मोटर्स के लिए है, 0.34 मिलेगा. जैसे हम एसी मोटर यूज करते हैं हमको 0.42 तक चला जाता है ये म्यू. वाई कैसे बढ़ गया भाई? वही व्हील है, वही रेल है. नाउ दिस हैज इंक्रीज्ड फॉर एसी मोटर्स एज 0.42. This is only due to the mode of operation of the traction motors. कैसे traction motor start ले रहा है? आप जानते हैं कि इंडक्शन मोटर कैसे चलता है और ये कैसे चलता है डीसी मोटर्स. डीसी मोटर में आपका क्या है? There is one field. Say this is the field winding. चार मेन पोल है, बीच में इंटरपोल्स होते हैं. अंदर में ये आपका आर्मेचर है. दिस इज द आर्मेचर. So you supply DC supply to this field as well as to this armature. मतलब चार केबल आपका जनरेटर से अल्टरनेटर से जाता है डीसी मोटर में रेक्टिफायर से. तब जाकर के ये मोटर का डेफिनेशन को फुलफिल करता है. व्हेन ए करंट कैरिंग कंडक्टर, दिस आर्मेचर को आपने सप्लाई भेजा है, नाउ इट हैज बिकम ए करंट कैरिंग कंडक्टर, इज प्लेस्ड इनसाइड ए मैग्नेटिक फील्ड. ये मैग्नेटिक फील्ड बना, इसमें आपने सप्लाई भेजा. इट एक्सपीरियंसेस ए टॉर्क एंड इट रोटेट्स. तो ये मोटर बन गया. ये डीसी मोटर में हुआ आपका. बट इन केस ऑफ एसी मोटर व्हाट यू डू, यू हैव ए फील्ड वाइंडिंग. ये फील्ड वाइंडिंग, मैग्नेटिक फील्ड्स बना हुआ है जगह जगह पर, पोल्स बने हुए हैं. तो यहाँ आर्मेचर है आपका. दिस इज द आर्मेचर. व्हाट यू डू, यू सेंड 3-phase AC सप्लाई. 3 तार आप यहाँ भेजते हैं, 3 केबल्स होगी, R Y B. तो ये तो दोनों को जैसे ही दोनों में सप्लाई भेजे, झट से घूम गया एकदम. और यहाँ क्या होता है? व्हाट हैपेंस हियर, यू सेंड 3 केबल्स सप्लाई थ्रू 3 केबल्स, 3-phase सप्लाई. जैसे ये 3-phase सप्लाई यहाँ आता है, व्हाट हैपेंस, योर पोल्स जो आपने यहाँ बना रखा है, ये रोटेटिंग फील्ड यहाँ क्रिएट होता है. नॉर्थ पोल और साउथ पोल अभी यहाँ है. द नेक्स्ट मोमेंट इट शिफ्ट्स टू
here, and the very next moment it shifts here. Now there is a rotation in the field created. Field winding is stationary, but the field created will rotate. अब ये रोटेटिंग फील्ड जब इस आर्मेचर के चारों तरफ एक फील्ड रोटेट कर रहा है, व्हाट विल हैपन, ये फील्ड जो भी मैग्नेटिक फ्लक्स बनाया है, ये आर्मेचर विल कट दोस फ्लक्सेस, इट विल सेटिस्फाई द जनरेटर डेफिनेशन और अल्टरनेटर डेफिनेशन. नाउ इट विल स्टार्ट जनरेटिंग सम वोल्टेज. नाउ इसमें क्या हो गया, इंड्यूस्ड हो गया वोल्टेज ड्यू टू दिस रोटेटिंग फील्ड. जैसे ही ये वोल्टेज जनरेट करना शुरू करेगा, इट बिकम्स ए करंट कैरिंग कंडक्टर. Now it is a motor. It is a current carrying conductor placed inside a magnetic field, though the magnetic field is also rotating with a speed of ns, synchronous speed, and this will also start rotating with a speed of n. Now you see the mode of operation, it just started rotating as soon as you have supplied. And this doesn't start just, you have supplied, now it created a, like a generator, it is induced with voltage, started creating voltage. Now it becomes current carrying conductor, then it slowly starts rotating. So the mode of rotation of the armature gives you this advantage. This friction is, coefficient of friction increases in case of AC motors. So the improved adhesion is bound to be there with a induction motors compared to DC motors. Is it clear to you? Now this ns minus n is called slip, and this slip governs the speed of the traction motor. You control the slip, you control the speed of the traction motor. This is the slip. Is it okay? Okay, sir. Okay. Now during wheel slip even, wheel RPM does not shoot up like DC motors. Wheel slip भी बहुत controlled है, इसमें wheel slip control is very fine compared to your DC motors. Now we will see APC. APC, auxiliary power converter against auxiliary alternator, has been provided. What does it do? It controls the battery bank voltage. And in case of 1400 HP, you have seen 110 was the battery bank voltage. Here we have reduced this to 96. And load sharing between DPCs means one single APC can supply all the coach fan and lights up to 12 trailer coaches. एक सिंगल एपीसी से है, जबकि आप 1400 एचपी में तीन जो एक डीपीसी के साथ तीन टीसी लगाते थे, तो ये टोटल चारों कोच को मिला करके एक ऑक्सिलरी को करता था, चार कोच. ये एक एपीसी 12 कोच को कर सकता है सप्लाई. और अगर केवल इमरजेंसी पॉइंट्स को सप्लाई करना है तो ये 20 कोच में दे सकता है. कुछ पॉइंट्स को इमरजेंसी रखा जाता है कि सप्लाई जब कम हो जाए तो इमरजेंसी लाइट्स एंड फैंस जरूर चलते हैं.
नाउ बैटरी ओवर चार्जिंग के अगेंस्ट में भी प्रोटेक्शन इसमें प्रोवाइडेड है, एंड द करंट लिमिट, जो प्रोटेक्शन का करंट लिमिट है वो 24 एम्प्स है। 24 एम्प्स से ज्यादा कभी नहीं जाएगा बैटरी में चार्जिंग के लिए। विथ इंक्रीज चार्जिंग करेंट द चार्जिंग वोल्टेज ड्रॉप्स एंड प्रोटेक्ट्स द बैटरी फ्रॉम हायर चार्जिंग करेंट्स। 3 फेज 415 वोल्ट भी हमको चाहिए कंप्रेसर के मोटर को चलाने के लिए। The compressor motor needs 3-phase 415 volts supply. So this APC also gives you 3-phase 415 volt supply along with this 96 volt supply. We will see how it provides. And the compressor is in a underslung condition. नीचे में अंडर गियर में कंप्रेसर लगा हुआ है इसका, अनलाइक 1400 HP जो ऊपर में इंजन के बगल में कंप्रेसर लगा हुआ है। Now we'll see, this is your engine, this is the starter motor. It will get supply from battery for cranking the engine, and this 24 volt alternator will be charging the batteries, 24 volt batteries. Here is the battery, there is the battery. It will be charged by this 24 volt, and this battery will supply to starter motor. इसको बड़ा कर लो, एरो ले लेता हूं। Now see, the engine is coupled with a traction alternator. Engine जैसे start हो जाएगा, now it will start generating 3-phase AC, and this 3-phase AC will be sent to the rectifier. Rectifier will convert it into DC. Now this DC will be called DC link voltage. This DC link voltage will go to, ये एक्चुअली ट्रैक्शन इन्वर्टर नहीं है, ट्रैक्शन कन्वर्टर है। इसमें TC एंड TI दोनों है। So it will go to the traction converter number 1 and traction converter number 2 consisting of TC and TI both. So यहाँ जाकर के ये क्या होगा, as per requirement ट्रैक्शन मोटर्स को 3-phase AC सप्लाई देगा। पहले कंट्रोल होगा DC, कंट्रोल DC, ट्रैक्शन इन्वर्टर में AC बनेगा 3-phase, वो 3-phase AC जाएगा ट्रैक्शन मोटर में। ये एक इन्वर्टर एंड ट्रैक्शन कंप्यूटर का सेट, जिसको ट्रैक्शन कन्वर्टर कहेंगे, दे विल कंट्रोल 2 मोटर्स। 1-2 के लिए एक है, 3-4 के लिए एक। नाउ फ्रॉम हियर ओनली एक टैपिंग लिया जाएगा, जिसको ब्रेक चॉपर में डाला जाएगा। ब्रेक चॉपर क्या है? दिस इज ए प्राइमरी सेफ्टी डिवाइस। इफ देयर इज हाई वोल्टेज इन DC लिंक वोल्टेज, किसी वजह से कंप्यूटर के खराबी के कारण हाई वोल्टेज हो गया, व्हाट विल हैपन, ये ब्रेक चॉपर में एक रेजिस्टेंस है, ब्रेक चॉपर में ये ऐसे DC लिंक वोल्टेज जा रहा है, यहां से एक रेजिस्टेंस है, एंड दिस रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड टू दी ये एक IGBT है, समझ लीजिए। तो ये मान लीजिए इसका कलेक्टर एमिटर है। सो एमिटर और कलेक्टर से इसका जुड़ा हुआ है, ये एमिटर है, सॉरी दिस इज कलेक्टर। तो जैसे ही इसमें सप्लाई, जैसे ही वोल्टेज ज्यादा हो जाएगा, एक लिमिट दिया हुआ है उससे ज्यादा, तो क्या करेगा, हमारा जो वोल्टेज व्हीकल कंट्रोल कंप्यूटर है, इट विल सेंड सप्लाई टू दिस IGBT गेट थ्रू ऑप्टिकल फाइबर केबल। और इसको जैसे सप्लाई मिल जाएगा, अब ये दिस रेजिस्टेंस वाज नॉट कनेक्टेड टू इन दिस सर्किट, बिकॉज इसमें कोई सप्लाई नहीं था, तो इस बीच में कंडक्शन नहीं था। नाउ एज सून एज इट गेट्स सप्लाई, ये IGBT का गेट जैसे ही सप्लाई मिलेगा इसको, तो इस ये कंडक्ट करना शुरू करेगा। एक्सेस वोल्टेज विल ड्रॉप इन दिस रेजिस्टेंस एंड ओनली रिक्वायर्ड वोल्टेज विल ट्रेवल दिस वे। So this is a safety device which is saving the components like traction inverter and traction computers from high voltage. Now from here there is a auxiliary converter, यहीं से टैपिंग करके DC लिंक वोल्टेज यहाँ भेज दी। ऑक्सिलरी कन्वर्टर में क्या होगा, व्हाट विल हैपन,
it will give you this, it will convert this DC through a, first it will go to a brake chopper, buck chopper. One is brake chopper, one is buck chopper. बक चॉपर, बक चॉपर क्या करेगा, इसको चॉप डाउन कर देगा वोल्टेज को, एंड उस चॉप डाउन वोल्टेज से फिर डीसी डीसी कन्वर्टर में दे करके उसको 110 वोल्ट बनाएगा और 96 वोल्ट से बैटरी को चार्ज करेगा, 96 वोल्ट से बनाएगा 110 वोल्ट, बट बैटरी विल बी चार्ज विथ 96 वोल्ट। बैटरी वोल्टेज आपको 96 मिलेगा। और दूसरा काम ये क्या करेगा, दूसरा काम यहाँ भी एक इन्वर्टर लगाना होगा जो इस डीसी लिंक वोल्टेज को बक चॉपर से चॉप्ड आउट होने के बाद में वो उस वोल्टेज को इन्वर्टर से 3 फेज एसी 415 वोल्ट एसी बनाएगा फॉर कंप्रेसर मोटर। सी, ये मोटर ड्रिवन कंप्रेसर है, इसके लिए 3 फेज 415 वोल्ट एसी बनाएगा और 110 वोल्ट डीसी बनाएगा कंट्रोल एंड बैटरी चार्जिंग विथ द हेल्प ऑफ ए बक चॉपर, डीसी डीसी कन्वर्टर। यहाँ पर दो चीज लगेगा और यहाँ पर लगेगा बक चॉपर एंड इन्वर्टर फॉर दिस। नाउ हियर इज इंजन कंट्रोल, ड्राइवर इज सिटिंग हियर एंड ये नॉच के अनुसार यहाँ ECU लगा हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोलिंग यूनिट, जो यहाँ पर चूंकि आपको जो सिस्टम लगा हुआ है फ्यूलिंग सिस्टम, वो है इलेक्ट्रॉनिक फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम। तो वो फ्यूलिंग सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए कि किस नॉच पर कितना फ्यूल दिया जाए, यहाँ से जैसे नॉच खोलेगा ड्राइवर, ECU विल कंट्रोल और अकॉर्डिंगली नॉच वाइज स्पीड यू विल excitation will be controlled circuitry। इसमें जो एक्साइटर लगा हुआ है उसके फील्ड की एक्साइटेशन को कंट्रोल कर। Then for propulsion control there will be a continuous communication between computer and this vehicle control computer। ये ट्रैक्शन कंप्यूटर जितना भी डाटा मोटर से मिलेगा सब व्हीकल कंट्रोल कंप्यूटर को दे देगा। व्हीकल कंट्रोल कंप्यूटर अकॉर्डिंगली जो है उसको कमांड करेगा कि कितना कंट्रोल करके डीसी वोल्टेज को उसको इन्वर्टर को देना है, अकॉर्डिंगली वो देगा और इन्वर्टर उसको 3 फेज एसी बना करके ट्रैक्शन। इस तरह से प्रोपल्शन कंट्रोल। ड्राइवर इज सिटिंग हियर फ्रॉम मास्टर कंट्रोलर, ही इज रनिंग दी ट्रेन। इसके पास यहाँ से थ्रॉटल हैंडल मिल गया, रिवर्सल हैंडल मिल गया, जिस डायरेक्शन में जाना है, जिस नॉच पे जाना है। So of course this computer will control everything on the basis of some feedbacks. There are some sensors that will provide feedback to this computer, and moreover there is a system of WTB and TCN. I have already told you, like in lieu of the intervehicular coupler, इसमें WTB है, वो उससे रिमोट DPC तक जुड़ा रहेगा, रिमोट DPC को सिग्नल जाएगा। So this completes your 1600 HP demo transmission system and its control in a nutshell. You will get it in details in the next session taken by Medha people, Mr. Pushkar Singh, service engineer, senior engineer from Medha. We will be taking the next class. So this is the engine I have already discussed yesterday also. पहले ये इंजन आता था कैटरपिलर का 3512C एंड अब आने लगा है ये कैटरपिलर के साथ, ये जॉइंट वेंचर इसका था ऑस्ट्रिया के साथ। वहां से ट्रैक्शन मोटर आता था, अल्टरनेटर आता था, ट्रैक्शन मोटर्स भी आते थे। अब इंडिजिनस चीजें ये ले रहा है और इंजन भी इसको कमिंस से मिल रहा है, QS के 50। So ये assemblies है some. He will also discuss with these assemblies everything. These are the traction motors. Now see, this is the APC, auxiliary power control.
conventional auxiliary generator with RRU has been replaced with APC. ऑक्सिलरी जनरेटर में 3 फेज एसी बनाता था, आरआरयू में जाके वो डीसी बनता था, फिर वो डीसी से बैटरी को चार्ज करता था। केवल एक ही काम करता था ये, जिससे कि वो बैटरी जो है फिर लाइटिंग में सप्लाई देता था और एक्साइटर को भी एक्साइट करना इसी का काम था, कंट्रोल वोल्टेज भी जाता था यहाँ से। तो इसके बदले में हमने एपीसी ले आया, और एपीसी में कहां से हमने वोल्टेज दिया, डीसी लिंक वोल्टेज दे दिया एपीसी को, और इसी को कन्वर्ट किया हमने अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार डिफरेंट वोल्टेजेस में, एसी वोल्टेज और डीसी वोल्टेज। सो पहले तो हमने इससे आइसोलेटेड 110 वोल्ट डीसी वोल्टेज लिया बैटरी वगैरह चार्ज करने के लिए, लाइटिंग फैन के लिए। नेक्स्ट हमने लिया 3 फेज एसी 415 वोल्ट फॉर कंप्रेसर एंड ब्लोअर्स। जो टीसीसी में ब्लोअर्स लगे हैं उसको कूल करने के लिए भी एसी सप्लाई चाहिए, वो भी इसी मोटर से जाता है, 3 फेज सप्लाई से। इसी 3 फेज सप्लाई से वो मोटर्स, ब्लोअर मोटर्स चलते हैं। नाउ सिंगल एपीसी हमने बात किया कि 12 कोच को कर सकता है लाइटिंग, मतलब 2 बेसिक यूनिट तो कर ही लेगा, और 4 बेसिक यूनिट को लाइट फैन दे सकता है फॉर इमरजेंसी कनेक्शन, फुल कनेक्शन नहीं। ये है एपीसी। So this is the vehicle control computer. You can see it will be having 27 slots. 27 slots. बट एक स्लॉट स्पेयर है, कार्ड रहेगा 26 कार्ड्स रहेगा या मॉड्यूल्स। लाइक एचएचपी लोको एकदम सेम चीज यूज किया है इसमें। और इट विल कंट्रोल द ट्रैक्शन कंप्यूटर टू कंट्रोल द ट्रैक्शन मोटर्स। ये देखिए इसका कंट्रोल डेस्क है, ड्राइवर यहीं से गाड़ी चलाएगा। ईपी ब्रेक का सिस्टम है इसमें। ईपी ब्रेक कंट्रोल यूनिट इज आल्सो प्रोवाइडेड हियर, बट इट इज टेकन फ्रॉम सम अदर सप्लायर, नॉट फ्रॉम वेदा। ये दोनों स्क्रीन जिसकी बात मैं कर रहा था, सी दीज आर द 2 स्क्रीन्स प्रोवाइडेड हियर। अगर एक खराब हो जाए तो दूसरे से काम चलेगा, डिस्प्ले यूनिट्स। दिस इज द कंप्रेसर। ये देख रहे हैं कंप्रेसर है, 2 एलपी और एक एचपी सिलेंडर इसमें होगा। ये मोटर है, कंप्रेसर का मोटर, दिस इज द कंप्रेसर मोटर। ये इंटरकूलर हो गया। अंडर गियर में ये है मोटर ड्रिवन रेसिप्रोकेटिंग एयर कंप्रेसर। ये बैटरी बैंक है, स्टार्टर बैटरी बैंक इन बैटरी का, और ये 110 वोल्ट वाला बैटरी बैंक जो यहाँ 96 वोल्ट देता है। हेलो सर। हाँ सर हाँ बोलिए। सर बोल रहे थे ट्रैक्शन ऑल्टरनेटर से जो 3 फेज एसी निकलता है, आउटपुट होता है, तो उसका कितना वोल्टेज तक रहेगा? ट्रैक्शन ऑल्टरनेटर का जो 3 फेज देखिए एचएचपी लोगों में जो है ये 2600 वोल्ट बनता था, 2600 बनता था एचएचपी लोगों में। सिस्टम सेम ही रखा है। इसमें ये कहता है कि हमारा 2400 वोल्ट बनता है, इससे ज्यादा नहीं बनता। 2400 के बाद जो है ब्रेक चॉपर इसको कम करता है, ब्रेक चॉपर इसको कम करता अच्छा, डीसी लिंक वोल्टेज तो 750 तक रहता है ना? है। डीसी लिंक में डिपेंड्स ऑन द नॉच, DC किस नॉच पे आप हैं। हाँ सर, 750 से 620 वोल्ट से लेकर के फर्स्ट नॉच में 620 वोल्ट मिलेगा आपको। अकॉर्डिंग टू नॉच ये बढ़ेगा, बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम 2400 तक जाएगा।
ये सब तो डिस्कस किया हमने, एपीसी को थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। दिस इज दी ऑक्सिलरी पावर कन्वर्टर। पहले जो डीसी लिंक वोल्टेज आया, सबसे पहले ये एपीसी आईसी में आता है, ऑक्सिलरी पावर कन्वर्टर इनकमिंग यहां आता है सबसे पहले। अब इसके आउटगोइंग से आगे जाएगा, तो यू विल सी ये इनकमिंग में आया, देन इसके आउटगोइंग से बक चॉपर में आएगा। बक चॉपर में ये थोड़ा रिड्यूस्ड होकर के वोल्टेज देन थ्री फेज इन्वर्टर में जाएगा, और थ्री फेज इन्वर्टर से ये थ्री फेज एसी बनेगा, जिसको हम यूज करेंगे एपीसी ब्लोअर में, यूज करेंगे कंप्रेसर के मोटर में, ठीक है। देन देयर इज ए डीसी डीसी कन्वर्टर, यहीं से टैपिंग करके बक चॉपर के बाद रिड्यूस्ड वोल्टेज को ये डीसी डीसी कन्वर्टर में देंगे। यहां से ये बनेगा 110 वोल्ट, जिससे हम लाइटिंग, फैन, बैटरी चार्जिंग डिफरेंट जगह में देंगे सब। तो ये सर्किट्स जो है ये डिटेल में डिस्कस करेगा, मेगा वाला आएगा आपको सेकंड सेशन में। तो देखिए यहां से आया बैटरी चार्जिंग में, ये है आपका, ये क्या बोलते हैं उसको, ब्रेकर, इसको बैटरी ब्रेकर। ये जब तक नहीं पिकअप करेगा बैटरी चार्ज नहीं होगी। सो यू सी बैटरी चार्जिंग के अलावे पीरियड है, और ये डायोड डायोड लगा हुआ है सर्किट में, अलग अलग टर्मिनल्स बना करके आगे इस सर्किट में सप्लाई दी। सो द कन्वेंशनल डेमो इन ऑक्सिलरी जनरेटर, if the auxiliary generator or AVR is failed, only emergency lights are illuminated in the trail coaches of the basic unit. In the ACAC demo, single APC is capable to supply 12 coaches in 2 basic units. In case of 3-4 basic units, केवल emergency supply देगा। तो auxiliary से बहुत ही ज्यादा पावरफुल है ये APC, auxiliary power converter. Now see how the circuit goes. These all will be explained in detail by the MEDA personnel who is coming in the second session. Just I have given you the idea, nutshell idea, what the auxiliary power converter will do. It will give the three-phase supply to the blower also and to the compressor motor also, and it will give 110 volt supply for lighting, fan, battery charging, etc. Now we will just see how the power distribution takes place from the engine to the motors. See, this is your exciter armature, this is exciter field. When this field gets excitation, this starts generating three-phase AC. Now this rectifier assembly rectifies it into DC. Now that DC supply is coming to the field of the traction alternator. Now this will produce your three-phase AC, U phase, B phase and W phase. Now this three-phase AC generated will be sent to the rectifier. इसको DC बनाया जाएगा. From here, from this rectifier, the DC supply, DC link voltage is sent to the inverters. देखिए ये इन्वर्टर है, छह जो IGBT लगे हैं, दिस constitutes one inverter, 6 IGBTs constitutes one inverter, और दो इन्वर्टर होगा, दो इसमें कंप्यूटर। तो यहां से दो मोटर को कंट्रोल करने के लिए दो इन्वर्टर में चला गया सप्लाई, इसी तरह दूसरे बॉगी के दो मोटर पे सप्लाई जाएगा।
सो यहां से 2 मोटर में सप्लाई गया, 2 इन्वर्टर है, और यहां से 2 मोटर में सप्लाई आया। सो दिस इज द पावर डिस्ट्रीब्यूशन। और इसके एक्साइटेशन को कंट्रोल करने के लिए यहाँ एक आईजीबीटी लगा हुआ है, और इस आईजीबीटी के गेट को हम व्हीकल कंट्रोल कंप्यूटर से कंट्रोल करते हैं, जिससे इसके एक्साइटेशन को कंट्रोल करते हैं। इसके एक्साइटेशन को कंट्रोल करेंगे तो इसमें जो सप्लाई आ रही है वो कंट्रोल हो जाएगा। मीन्स यू आर कंट्रोलिंग द फील्ड ऑफ द मेन अल्टरनेटर बाय कंट्रोलिंग द फील्ड ऑफ द एक्साइटर। So any question in this power distribution circuit? Hello, sir. हाँ बोलिए। So what about any isolation of truck or motor Isolation? in case of any power ground or any earth fault, sir? Can you isolate motor or truck? यस, इसमें आपको ट्रक को आइसोलेट करना पड़ेगा। नो, एक सिंगल मोटर आइसोलेट नहीं होगा, नहीं होगा। क्योंकि एक इन्वर्टर जो है वो 2 मोटर को कंट्रोल कर रहा है। हाँ। So you have to isolate this inverter. लेकिन एचएचपी में Once you एचएचपी लोगों isolate में कर this सकते inverter, हैं, 2 motors will be isolated. हैं? एचएचपी लोगों में इंडिविजुअल मोटर कर सकते हैं ना? हाँ, एचएचपी लोगों में मेगा सिस्टम में सिंगल मोटर को आइसोलेट कर सकते हैं। ईएमडी वाले में फिर ट्रक आइसोलेट करना पड़ता है। हाँ, यस सर। ओके Sir, हाँ, when brake chopper get fired, ब्रेक चॉपर get fired, ब्रेक चॉपर जो आपका डीसी लिंक वोल्टेज है उससे ज्यादा वोल्टेज अगर हो गया ड्यू टू मेल फंक्शनिंग ऑफ द कंप्यूटर, समटाइम्स इट हैपेंस। एचएचपी लोगों में भी है, एचएचपी लोगों में 2800 होने पर ब्रेक चॉपर फायर करता है। ब्रेक अच्छा। चॉपर सर अनदर क्रॉबार भी रहता है, वो क्या काम करता है सर? क्या क्रोबार? क्रोबार इसमें नहीं है, और एचएचपी में भी जो मेगा सिस्टम में क्रोबार था उसको मेगा ने हटा दिया। क्रोबार ऑपरेट्स इन 2 वेज, वन इज सॉफ्ट एंड वन इज हार्ड क्रोबार ऑपरेशन। सॉफ्ट क्रोबार में ये 2000 से ज्यादा एंड अप टू 3400 वोल्ट तक सॉफ्ट क्रोबार फायरिंग से कंट्रोल होता है, चॉपिंग होता है। एंड बियॉन्ड 34 टू 3600 ये हार्ड क्रोबार फायरिंग मींस देयर इज अ हार्डवेयर सर्किट, केबल से जोड़ा हुआ सर्किट है, उसमें एक स्विच है, वो ऑन हो जाता है और डायरेक्टली उस एससीआर को, क्रोबार में एससीआर रहता है, इसमें आईजीबीटी रहता है, ब्रेक चॉपर में। क्रोबार में द ऑपरेटर इज एससीआर, सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर, उसके गेट को सप्लाई देना होता है। सॉफ्ट क्रोबार में जो लोको कंट्रोल कंप्यूटर है वो सप्लाई देता है एससीआर के गेट को, और हार्ड क्रोबार फायरिंग में देयर इज ए हार्ड वायरिंग सर्किट, हार्डवेयर सर्किट। सो उसमें एक स्विच है, वो 3400 वोल्ट के बाद वो स्विच जो है ऑन हो जाता है। बेसिक डिफरेंस इन बेसिक होगा तो ड्राइव, बिकॉज़ यू विल बी ऑपरेशन ऑफ दिस लोगो विल बिकम आइडल, नो पावर हो जाएगा, और किसी भी तरह से जब तक उसको रीसेट नहीं करेगा तब तक उसको पावर नहीं मिलेगा। फॉर रीसेटिंग यू हैव टू शट डाउन द लोकोमोटिव and then wait for 10 to 15 seconds, and then he will switch off all the switches and then restart the engine. Now the SCR gate will be reset. Thank you sir. Okay, is it clear? Yes sir.
sir, हाँ, how many types of control systems are provided in demo, sir? डेमो में केवल Only, देखा ही दिया, only, और कोई only नहीं one, दिया, इंडिजिनस है ना हमारा, only Meda system. मेधा सिस्टम है। Okay, sir. सो कोई क्वेश्चन हो तो पूछिए, और इसके डिटेल्स में तो आएंगे ही सेकंड हाफ में, और डेमो में और कुछ जानना चाहते हैं तो बोलिए, मेरे पास समय सर बहुत एक बच गया मेरा है, क्वेश्चन था। 11:30 तक आप पूछिए। हेलो हेलो हाँ? सर, हेलो सर। हाँ बोलिए सर मेरा एक क्वेश्चन था। प्लीज। हाँ, सर 1400 HP में जब हम वन नोट से 8 नोट तक जाते हैं तो फास्ट पंपिंग होता है। हेलो 1400 सर। एचपी में 8 नॉच में तो कभी जरूरत ही नहीं पड़ता, 4th नॉच में चल जाता है। नहीं सर, 1 नोट से जब हम 8 नोट तक जाते हैं तो फास्ट पंपिंग होता है, तो उस समय सर हमारा कंप्रेसर प्रेशर ज्यादा बनाता है और रेडिएटर फैन भी हाँ, ज्यादा स्पीड से घूमते हैं। हेलो सर। तो सर हाँ, 1600 बोलिए। 1600 सर 1600 HP में भी ऐसा है कि कंप्रेसर ज्यादा प्रेशर बनाएंगे। देखा, सिस्टम कंप्रेसर का बिल्कुल अलग है, वो एसी मोटर से चलता है, और जैसे ही प्रेशर उसका कंप्लीट हो गया लोडिंग, एसी मोटर का पावर को काट दिया जाता है, और बंद कर दिया जाता है। किसी रेडिएटर भी फैन नॉच में ज्यादा चले, स्पीड से इट चलेंगे डजंट सर। डिपेंड अपॉन द नॉच। रेडिएटर यस सर। फैन जो है हाइड्रोलिक मोटर हाँ से सर। चलता है दोनों में, तो इट विल डिपेंड अपॉन द नॉच, ओ, चलता ओके रहेगा। सर। एंड देयर इज नो कंट्रोल ऑफ रेडिएटर फैन आरपीएम। और वाटर कूलिंग सिस्टम में एक चीज बता दें, आपने जब सवाल पूछा है, तो वाटर कूलिंग सिस्टम में इसमें, लेट मी शेयर वन ब्लैंक स्लाइड। अच्छा, इसी में आते हैं, चलिए। आपने पूछा कि रेडिएटर फैन चलता है, हाई स्पीड में चलता है। अब हमारा जो कूलिंग वाटर सिस्टम है, कूलिंग वाटर सिस्टम में टेम्परेचर को कंट्रोल करना, तो टेम्परेचर को कैसे कंट्रोल करेंगे हम? उसके फैन के आरपीएम को कंट्रोल करने का कोई उपाय मेरे पास नहीं है। हाइड्रोलिक मोटर से चलता है, जैसा जिस नॉच में आरपीएम है उस आरपीएम में चलता रहेगा। सो हाउ वी विल कंट्रोल द हीट absorbed by the water to dissipate it in the atmosphere? इसके लिए क्या करते हैं, हीट जो है, हीट को आप लें या छोड़ें, यू डिसिपेट इट और यू, इसके लिए एक फॉर्मूला है, H is equal to mst। m is the mass of the water, वाटर से आप हीट ले रहे हैं, सिस्टम का हीट को वाटर में एब्जॉर्ब कर रहे हैं, और वाटर को ही कूल करेंगे आप। S is the specific heat of water and T is the temperature difference। अब जो टेम्परेचर डिफरेंस है उसको हम फैन स्पीड से तो कंट्रोल कर नहीं पाते हैं, मतलब टेम्परेचर डिफरेंस से हम इस हीट को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। नाउ व्हाट वी विल डू इन केस ऑफ एचएचपी, सॉरी, इन केस ऑफ डेमो वाटर कूलिंग सिस्टम, इट इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम लोकोमोटिव। डेमो वाटर कूलिंग सिस्टम में सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि हम इस मास ऑफ वाटर को कंट्रोल करते हैं। एक्चुअली जो हमारा रिटर्न पाइप है ना, जो रेडिएटर कोर की तरफ दोनों साइड से जा रहा है, इट हैज गॉट ए थर्मोस्टैटिक वाल्व हियर, बोथ साइड से। इस थर्मोस्टैटिक वाल्व से होके ही तब रेडिएटर कोर में जाएगा। इधर से एक रेडिएटर कोर में चला गया एक साइड का, ये रेडिएटर कोर है आपका, दूसरे साइड का रेडिएटर कोर में इधर से चला गया,
बट चूंकि यहाँ पर थर्मोस्टेटिक वाल्व आपने लगा दिया है, ये थर्मोस्टेटिक वाल्व है, तो ये थर्मोस्टेटिक वाल्व टेम्परेचर के अनुसार, एज पर टेम्परेचर इट ओपन्स, क्योंकि टेम्परेचर इज 72 डिग्री सेंटीग्रेड पानी का, देन ये स्लाइटली ओपन होना शुरू हो जाता है, स्टार्ट्स, और थोड़ा पानी ये रेडिएटर में जाके थोड़ा कूल होकर के आया, बाकी जो पानी यहाँ हॉट वाटर था उसके साथ मिक्स होकर के फिर इंजन को कूल किया। देन व्हेन द टेम्परेचर बिकम्स 90 डिग्री सेंटीग्रेड इट फुल्ली ओपन्स, देन पूरा पानी जाता है कूल होने के लिए। In this way, by controlling the mass of water, we control the heat transfer from water to atmosphere through the radiator core. क्योंकि रेडिएटर कोर तो एक ही समान ठंडा करता चला जाएगा, जिस नॉच में चल रहा है, जो स्पीड फैन का है उसको हम लोग कंट्रोल कर ही नहीं सकते हैं, जैसे लोगों में फैन स्पीड कंट्रोल कर लेते हैं। सो व्हाट इज, बहुत बड़ा डिफरेंस है ये डेमो में और इंजन में। यस सर। हेलो सर। हेलो सर। लेना है मतलब, एक तो मेरे पास में हम साइन करते हैं, संजय को बुलाते हैं, आपके पास भेजते हैं, क्लास में है। हेलो सर। हाँ हाँ बोलिए। सर कुछ क्वेश्चन था 1400 एसपी डेमो के ऊपर। हाँ हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। एक मिनट जरा सा, सर। एक मिनट जरा सा, प्रोफेसर साहब फोन किए हैं, एक मिनट बात कर लेता हूँ फिर आपसे बात ओके करता सर, हूँ। ओके सर, ओके सर। हाँ सर, वो सॉफ्ट वाला मत भेजिए, सॉफ्ट वाला फाइल मत भेजिए। हाँ बैक कर दीजिए हमको। हाँ 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 हाँ। सर। अरे संजय को ये दो साइन होते हैं। हाँ बोलिए बोलिए, प्लीज आस्क। हाँ सर, बोल रहे थे मुझे कुछ स्टैंडर्ड वैल्यू चाहिए, जैसे कि लोड मीटर का हर नॉच के वाइज अगर स्टैंडर्ड वैल्यू मतलब कितना एम्पियर होना चाहिए लोड मीटर रीडिंग। अभी तो फिलहाल मेरे पास नहीं है, ओके सर। बट आई कैन प्रोवाइड यू। ओके सर। आज मैं शेड से ले लेता हूँ उसको, मैनुअल से, ओके सर। और फिर आपको देता हूँ, ठीक है सर और एक चीज का क्या, लोड मीटर का स्टैंडर्ड वैल्यू, और सर जो चार्जिंग ऑल्टरनेटर लगता है ना 24 वोल्ट बैटरी को चार्ज करने के लिए, उसमें हाँ तो हाँ एक हाँ बेल्ट हाँ माउंट रहता है ना। सर उस बेल्ट का और ऑक्सिलरी हाँ। ऑल्टरनेटर का जो बेल्ट है, इसका इसका टेंशन का तो कुछ स्टैंडर्ड वैल्यू रहेगा जो। टेंशन का स्टैंडर्ड वैल्यू, हाँ सर, हाँ सर। वो भी बता देंगे। ओके सर, थैंक यू सर। बेल्ट टेंशन। ओके सर। और सर हेलो। हाँ बोलिए। हेलो। और सर हाँ प्लीज। हेलो। हाँ हाँ बोलिए बोलिए, प्लीज कंटिन्यू। सर एक डीपीसी में सर हाल ही में एक डीपीसी में एक प्रॉब्लम हाँ हम लोग रिकॉग्नाइज किए कि सर वो नो लोड में जब हम लोग नॉचिंग करते हैं तो उसका आरपीएम सब सही रहता है, बट इन लोड आफ्टर फोर्थ नॉच हंटिंग शुरू हो जाता है सर। ओनली आफ्टर फोर्थ नॉच हंटिंग शुरू हो जाता है, और इतना ही आरपीएम बहुत गिर आपका जाता है, और एलसीसी कभी कभी गवर्नर है ना, आरपीएम ज्यादा। एलसीसी गवर्नर है, यस सर। हम तो एलसीसी गवर्नर, उसमें यस सर। उसमें बहुत सारे पोर्ट ऐसे बने हैं, वो उसमें बड़ा एक्सपर्ट आदमी का जरूरत है, हाईली एक्सपर्ट हाँ पर्सन सर। जो होते हैं, वो हमारे कुछ एक दो टीचर थे, एक एसएससी थे, वही लोग एडजस्ट करते थे हाँ इसको, सर। वहीं से एडजस्ट होगा। ओके सर। एलसीसी का मैं अच्छा। पोर्ट बना हुआ है कुछ एडजस्टिंग के लिए। सर एक्चुअली हम लोग उसके लिए बहुत कुछ किए, जैसे कार्ड भी हम लोग चेंज करके देखे, पीटी पाम, एक्चुएटर, एमपीयू, इवन एमपीयू, एवरीथिंग चेंज करके देखे, लेकिन ये प्रॉब्लम मतलब वो गया नहीं नहीं करना सर। है, जो एलसीसी का जो भी कार्ड आप लगाएंगे तो उसको एडजस्ट करना होगा, या हाँ तो सर, नेक्स्ट एलसीसी स्टैंड पर एलसीसी उसको का। करके लाए, ओके। हाँ, ओके सर। या ओके। जीएमयू में itself भी कर लेता है एक्सपीरियंस आदमी। ओके सर। और सर एक चीज की सर जो 1400 एचपी का ट्रैक्शन मोटर ट्रैक्शन ऑल्टरनेटर है,
उसमें जो ग्रीजिंग का पीरियोडिसिटी कितना है, मतलब कितना ड्यूरेशन के बाद ग्रीजिंग करना चाहिए सर? बियरिंग में ग्रीसिंग, हाँ, ट्रैक्शन मोटर में सर। हाँ ट्रैक्शन मोटर 18 महीने में होगा, ओके सर। 18 मंथ्स, और ओके सर। ऑल्टरनेटर 36 मंथ्स में, 36 मंथ्स। 36 मंथ्स। ओके, थैंक यू सर। हेलो सर। हाँ बोलिए। हेलो सर, हमारा हाँ जो हाँ अभी बोलिए। आईवीसी कपलर है 1600 डेमो में जो हाँ आईवीसी कपलर है सर, उसमें सर ABCDE हाँ है। इंटरवेंकुलर कपलर, तो हाँ। हाँ सर, तो उसमें सर WTB कौन सा है सर? हाँ बोलिए। उसमें सर 1600 में WTB कौन सा है सर? उसमें दो तरह का, वो जो कपलर है देखिएगा, दो तरह का होगा। एक WTB वाला कपलर है, एक TCN वाला कपलर है। एक कपलर खराब हो, दूसरा तरफ से काम कर सकता है। रिडंडेंसी के लिए दिया गया है दो तरह का कपलर। सर WTB वाला पहचान में कैसे आएगा सर, कौन सा वाला है? ये चला गया। आपके यहाँ 1400 हेलो एक्स्ट्रा सर। चल रहा है क्या? आपके यहाँ हेलो सर। हेलो। हाँ 1600 HP डेमो आपके यहाँ चल रहा है, आप जहाँ हैं? हेलो सर। हाँ बोलिए। सर बोल रहे थे एक्साइटर में जो इनपुट देते हैं हम लोग, मैं एक्साइटर जो 1400 एचपी का जो एक्साइटर है सर, उसका इनपुट क्या आरआरयू मतलब ऑक्सिलरी ऑल्टरनेटर का आउटपुट आरआरयू के थ्रू जाके फिर एक्साइटर में इनपुट होता है क्या, ना कि सर डायरेक्ट बैटरी से? डायरेक्ट बैटरी से है। ओके सर, 110 वोल्ट बैटरी से। ओके सर, थैंक यू सर। संजय।
हेलो। बोलिए।